Assalamualaikum. How are you all? Today's topic is about the sustainable solution, which occurs due to the problems which occur due to the siltation in dams. Uh, First, we will be going through the topic of siltation also. Okay, what is a siltation? एक्चुअली सिल्टेशन जो है वो आपके अ, वो चिकनी मिट्टी अलूवियम सॉइल होती है जो कि आपके थ्रू रेन्स या थ्रू द रिवर वाटर इट कम्स एंड इट गेट डिपॉजिटेड ऑन द बेड ऑफ द डैम्स। और इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच फाइन सॉइल clay and mineral particles they get accumulated in a body of water, or it can be resulting in a condition of water that is polluted with these suspended sediments। ठीक है, वो इन्हीं की वजह से होते हैं। अच्छा, siltation जो है pollutes the waterways, reduces the depths of the dam and harm the ecosystem also। ठीक है, because why reason is this कि it is blocking the sunlight and smoothing the habitats। ठीक है ना, the habitats which are found under the river water, for example fish and other plants also, they are unable to get the oxygen level according to their desire, or they are unable to get the sunlight also due to that siltation। uh, this is the picture that how siltation is being done। This is the river water which is coming from here। ठीक है, रेनफॉल भी हो रही है, रिवर वाटर भी है, and river water is flowing and it is going into a dam and you can see a brownish matter। ठीक है, ये जो है this is the siltation। ये कि आपकी जितनी भी जो है वो sediments और soil particles जो हैं they come here and they get settled down। this is, अब ये तो drawn picture है। let me show you the original picture also। this is the original picture। okay, we can see the color of the water brownish water है and it is the water is flowing along with the sediments of rocks and alluvium soil। जी जनाब, so this is the process of siltation, and when this goes and get dumped into the dam, it start the decreasing the storage capacity of the dam। अच्छा जनाब, सो हमें इसका सोल्यूशन क्या है, हाउ टू सस्टेन द वाटर एंड व्हाट वी शुड डू एंड हाउ टू सस्टेन the storage capacity of the dam also। So and one of the solution is that we could increase the storage capacity। how we can only build the wall of the dam higher देन द प्रीवियस वन। जो डैम हमने इनिशियल बेसिस पे बनाया था उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो रही है, तो हम क्या करें, हम उसकी वॉल को चारों साइड से और बड़ा कर दें ताकि जो है उसमें फिर पानी और ज़्यादा कलेक्ट होने लगे। ठीक है, इसलिए कि रीज़न इज़ दिस कि हम ये नहीं कर सकते कि वी कैन क्लियर द वाटर फ्रॉम द डैम फ्रॉम द बिग डैम्स and then clean the basement and remove the siltation from the basement of the dam। why reason is this कि then we have to make another huge reservoir like the previous dam in order to store the water। ठीक है, जो बिग डैम में बिलियंस क्यूबिक मीट जो है बिलियंस ऑफ क्यूबिक्स में जो है वो वाटर जो है ये स्टोर होता है। तो हम इसको जो है जनाब बिलियंस क्यूबिक मीटर्स में, तो हम इसको जो है जनाब दोबारा से तो नहीं बना सकते ऑब्वियसली, उसके साइड बाय साइड एक और डैम नहीं बन सकता एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, और बिल्डिंग अ वॉल ऑल्सो बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव वन। लेकिन बहरहाल एक सोल्यूशन तो ये है। ठीक है,
Or as far as siltation is concerned, siltation will definitely continue. रीज़न क्या है? वो जो रिवर फ्लो करता हुआ आ रहा है, इट इज़ ब्रिंगिंग द सॉइल पार्टिकल्स अलोंग विद इट, और वो तो फिर जाके फिर डैम में जो पानी जहाँ पे रेजरवायर में जमा हो रहा है, जहाँ पे, वहाँ पे तो फिर ज़ाहिर है मट्टी और सिल्टेशन इज गोइंग अलोंग विद इट, और वो इट गेट डिपॉजिटेड ऑन द बेसमेंट। आप जितनी भी वॉल हाई कर लें, फिर स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाएगी और ज़्यादा जो है सिल्टेशन बढ़ती ही जाएगी। एक और तरीका ये हो सकता है कि सेकंड वे क्या है, ड्रजिंग सेडिमेंट आउट ऑफ द रिजर्वायर। This is very expensive and has to be repeated frequently for effective outcomes. And it can only be done in small dams. It cannot also be done with big dams. ठीक है, जो big dams है हमारी, जैसे तरबेला, मंगला, वारसाक and other dams, it cannot be done with them. Dredging sediments का मतलब होता है कि clearing the beds आउट ऑफ द रिजर्वायर। जो बेड है या जो बेसमेंट है, बेड, BED, बेड, बेड का मतलब जो बेसमेंट है, वो हम उसको क्लियर करें। ठीक है, एंड अगेन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड बट और इसके अलावा भी ये भी अगेन वी हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, फिर अनदर वे इज दैट द फ्लशिंग आउट द sediment. This has unsustainable impacts on river ecosystem downstream from the dam, which suddenly receive large volumes of water and a huge amount of sediment. अब थर्ड तरीका क्या है कि किस तरह से हम सस्टेन करें और सेडिमेंट्स को हटाएं, कि हम डैम्स को फ्लश आउट करें। अब ये क्या है, व्हाट इज़ दिस प्रोसीजर, कि हम इसको किस तरह से फ्लश आउट कर सकते हैं, और ये जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इफेक्ट डालता है रिवर के इकोसिस्टम पे। रिवर का इकोसिस्टम क्या है? रिवर में मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि रिवर में फिशेस आर प्रेजेंट, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मरीन प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन रिवर्स ऑल्सो। ठीक है, कोरल लीव्स एंड अदर थिंग्स। सो ये जो है जनाब, इस ये अफेक्टेड होते हैं। हाउ दे बिकम अफेक्टेड, लेट मी एक्सप्लेन इट, जस्ट वेट अ मिनट। अब हम इसको फ्लैश आउट कैसे करेंगे? ठीक है, ये दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्लशिंग इट आउट। ठीक है, फ्लशिंग क्या है? क्लीनिंग द डैम बट हर्टिंग द रिवर बिलो बिकॉज ऑफ ए सडन फ्लड ऑफ वाटर। अब क्या होता है एज फार एज स्मॉल डैम इज कंसर्न? सो दिस इज द डैम वॉल। ठीक है, अच्छा, फिर व्हाट वी विल डू, और दिस इज द वाटर लेवल, यहाँ तक पानी है, एंड दीज आर द सेडिमेंट्स। अब इनको हमें क्लीन करना है, तो वी हैव टू फ्लश देम आउट। फ्लश देम आउट का क्या मतलब है? जो बॉटम गेट होगा, वी विल बी ओपनिंग दैट गेट। ठीक है, तो बॉटम गेट से वाटर विल फ्लो आउट। ठीक है, अलोंग विद दोज सेडिमेंट, नीचे से जा रहा है तो वो सेडिमेंट को लेके तेजी से वो फ्लश आउट होगा। ठीक है, अब उसका नुकसान क्या होता है जनाब? उसका नुकसान ये है कि दिस फ्लैशिंग सडनली रिलीज लॉट ऑफ वाटर एट वंस। ठीक है, एक खुला एकदम से। ठीक है, इट ऑल्सो रिलीजेज अ ह्यूज लोड ऑफ मड एंड सेडिमेंट, but the river downstream isn't used to this sudden flood and mud, so it can damage fish, plants, river banks and ecosystem living there. हमने जो है जनाब सडनली जो है बॉटम से एक वी ओपन द वन ऑफ द गेट, तो वही जैसे, एंड यू नो कि जब रिवर वो डैम से when the gates are open, the water comes in a huge quantity with huge pressure also। सही है, तो वो जो प्रेशर के साथ जब वो आपके जो आप अदर एरियाज हैं वहाँ पे फ्लैश आउट होगा, तो एक तो वहाँ पे फिर जो है वो सेडिमेंट्स आर गोइंग, वो सारी सेडिमेंट्स जो है वो वहाँ पे जाएंगी, तो वो एरिया जो है वो मडी हो जाएगा। ठीक है, फिर जो उसके साथ अच्छा, ये हम रिवर के साथ ही फ्लो करवा रहे हैं कि, तो उसका नुकसान ये होगा कि रिवर जो जो बैंक्स है उसके साथ है वो अफेक्टेड होंगे। फिश, प्लांट्स, दे गेट अफेक्टेड ऑल्सो, और एकदम से जो फ्लशिंग ऑफ वाटर आएगा
तो हर चीज़ को वो फिर आगे जो एरियाज़ हैं उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन बहरहाल इसका एक तरीका ये भी है। फिर हम चलते हैं another way is constructing sediment traps on the river फीडिंग इनटू द रेजरवायर। ये करें ये कि जब जो रेजरवायर है, जो जहाँ पे जो स्टोरेज एरिया है डैम का, उससे पहले ही हम सेडिमेंट ट्रैप्स लगा दें कि वहीं पे सेडिमेंट्स या मिट्टी किसी हद तक स्टॉप हो जाए। ठीक है। पॉइंट्स वेयर रिवर फ्लो इज स्लो डाउन सो सेडिमेंट इज ड्रॉप्ड बिफोर इट रीचेस द रेजरवायर। वो ये कह रहे हैं ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे रिवर वाटर स्लो डाउन हो। जब स्लो डाउन होगा तो मिट्टी वहीं पे रुक जाएगी, सेडिमेंट्स वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और रिवर फिर स्लोली ग्रेजुअली फ्लो करता हुआ रेजरवायर में या जो आपके पूरा जो रिजर्व एरिया है, टैंक है उसका, डैम का, वहाँ पे चला जाएगा। अब इसको जो है जनाब, ये दिस इज़ द सेडिमेंट ट्रैप, दिस इज़ द ओरिजिनल पिक्चर ऑफ सेडिमेंट ट्रैप। ठीक है, कि यू कैन सी कि हो क्या रहा है कि वी हैव, अब ये बिल्कुल इन बिटवीन a very smaller area river is flowing। ठीक है, the rest of the sediments, the mud is being stopped here and at least 70-75% clear water is going is flowing ahead। ठीक है, so this is the sediment trap। ये it can be a better way to stop the sediment or to stop the siltation in the dam। सही है। another way, एक और क्या है सस्टेनेबल सोल्यूशन, क्या है जनाब, हम क्या करें कि reducing the amount of sediment entering the reducing the amount of sediment entering rivers feeding the reservoir by planting trees and vegetation on mountain slopes। अब पहले जहाँ से रिवर फ्लो करता हुआ आ रहा है ना, रिवर इंडस है, वट एवर जो भी रिवर है, वो माउंटेन्स की तरफ से जो फ्लो करता हुआ आ रहा है, तो वहीं पे हम बहुत ज़्यादा प्लांटेशन कर दें। उससे क्या होगा कि जब वाटर उन ट्रीज से टकराता हुआ, जब वो नीचे फ्लो करता हुआ स्लोप की तरफ आ रहा होगा, तो वो जो ट्री ट्रंक हैं, दरख्त के जो तने हैं, वो उन सेडिमेंट्स को उस सिल्टेशन को थोड़ा बहुत रोक लेंगे। ठीक है, और बाकी पानी तो फ्लो करता हुआ आ जाएगा। सो दिस इज अनदर वे। फिर एक और तरीका भी है कि वी शुड नॉट कंस्ट्रक्ट द बिगर डैम। what we should do, we should build smaller dams। ठीक है, dredging silt from small reservoir is much cheaper and easier। वो ये कह रहे हैं कि स्मॉल reservoir से जो है जनाब ड्रेजिंग आउट या क्लियर करना, clearing the bed of the या the basement of the dam is much easier and much cheaper also। बिग डैम का तो इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, सो ये एक तरीका ये भी है। सो दीज आर द 1 2 3 4 5 and 6 ways are there। 6 type of solution are there in order to reduce the siltation in dams। ठीक है जनाब, सो I hope you must have understood about it. And we were discussing about waterlogging and salinity in our previous lecture। I have explained you कि what is the procedure of waterlogging and salinity। So ये तो एक procedure है, and due to waterlogging and salinity the land area it get damaged, जहाँ पे वाटर लॉक्ड हो जाता है और सेलाइन हो जाता है, एंड इट बिकम्स barren, or it now that area cannot be used for irrigational or sorry, for agricultural purpose। We cannot grow crop in those areas where water logged are being logged, या water logging is being done, या you can say कि the process of waterlogging is done and salinity is there। So इसको भी we have to have some solution about it।
कि ज़ाहिर है कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल ड्यू टू रेनफॉल, ड्यू टू आपके मेल्टिंग ऑफ स्नो फ्रॉम द ग्लेशियर्स, या वट एवर द रीज़न इज़, कि उसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल समटाइम्स इट हैपन्स कि इट कम्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और फिर वो ज़मीन तो फिर बेकार होगी, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के काबिल नहीं रहती। समटाइम्स ये भी होता है कि हम जो है वो इरिगेशन जो कर रहे होते हैं, खेतों को जो पानी दे रहे होते हैं, डेफिनेटली वो भी एब्जॉर्ब हो रहा है, वो जो अंडरग्राउंड एब्जॉर्ब होता है उसकी वजह से भी वाटर लेवल हाई होता है अंडरग्राउंड। सो सॉल्यूशंस क्या क्या है उसके? सॉल्यूशन नंबर वन क्या है कि लाइनिंग कैनाल्स विद कंक्रीट टू रिड्यूस द लीक्स। ठीक है, जितनी भी कैनाल्स हैं, अच्छा, पाकिस्तान इज हैविंग द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, वी ऑल नो दैट, कि एक रिवर फ्लो कर रहा है, उसकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में हमने कनाल्स जो है वो डिग आउट की हुई हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वाटर थ्रू आउट द कंट्री टू द फार फ्लंग एरियाज। ठीक है ना, पूरे थ्रू आउट द कंट्रीज हमने ये किया हुआ है। अब ऑब्वियसली वी आर नॉट हैविंग इनफ फाइनेंस कि वी शुड बी सीमेंटिंग ऑल द कनाल्स। ये जो कनाल्स डिग आउट हुई हैं कच्ची कनाल्स हैं, कच्ची नहरें हैं, और उनको बस खाली ज़मीन को खोद करके और उनको जो है वो वहाँ से वाटर फ्लो करवाया जाता है टुवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, अब होता क्या है कि व्हेन द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम दोज canals, तो from the walls and from the basement, they get absorbed, um, and this is how underground water level gets higher and higher. अच्छा, ये ही इसी को इन्होंने कहा है कि ये इसको रिड्यूस करने के लिए इन लीक्स को वी शुड कंक्रीट या वी शुड लाइन अप ऑल द क्लान। लाइन अप का मतलब है वी शुड सीमेंट ऑल द ग्रास, के इट शुड बी सीमेंटेड, के दोनों तरफ की वॉल्स और बेसमेंट शुड बी सीमेंटेड। लेकिन मसला क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि व्हेन वी आर सीमेंटिंग द कैनाल्स इट इन्वॉल्व्स वेरी हाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब ये जो कह रहे हैं कि ये कैसे है भाई, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्यों होगा अगर हम सीमेंटिंग करेंगे नहरों की दीवारों को, या फिर जो है वो आपके क्या कहते हैं बेसमेंट को। इसका अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। होता क्या है, जो सीमेंट है ना, टू मेक सीमेंट फैक्ट्रीज हीट लाइमस्टोन टू अ वेरी हाई टेम्परेचर इन बिग फर्नेसेस। ठीक है जनाब, दिस हीटिंग नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल ऑल्सो। सही है, चाहे वो कोल से बनाए वो फ्यूल या फिर गैस से बनाए, विच रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब उस फ्यूल के लिए उसको उसको हीट अप करने के लिए जो फ्यूल चाहिए, जब वो हम उसको वो फ्यूल यूज़ करते हैं तो वो फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा होता है। Also, when limestone itself is heated, it releases carbon dioxide as a chemical reaction। और इसके अलावा जो है लाइमस्टोन जो है जब उसको हीट अप किया जाता है तो वो खुद भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा होता है। बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस टुगेदर क्रिएट अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमें इतनी सारी जो कनाल्स है अगर हम उनको सीमेंट करने जाएंगे तो इट मीन्स के वी विल बी क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है जनाब। सो और इसको मैंने इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं कि जनाब ये देखें कि वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम क्या है, कि वाटर लीक्स फ्रॉम कैनाल्स। देन सोल्यूशन क्या है, हमने लाइन कैनाल विद कंक्रीट। कंक्रीट के लिए हमें सीमेंट चाहिए, सीमेंट की प्रोडक्शन के लिए हमें लाइमस्टोन को हीट करना है, और फ्यूल इज नीडेड, एंड फ्यूल एंड लाइमस्टोन बोथ रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। रिजल्ट क्या है, हाई ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, सो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है जनाब, यहाँ तक बात समझ में आ गई। सो ये इसके लेकिन बहरहाल वी हैव टू ये इसके बेनिफिट और ड्रॉबैक दोनों बता रहे हैं कि लाइनिंग ऑफ कैनाल इज मस्ट, कि भाई ताकि जो है वो अंडरग्राउंड वाटर लेवल हाई ना हो, वाटर भी इस तरह वेस्ट नहीं होता है।
लेकिन बहरहाल इसका एक ग्रीन हाउस साइड इफेक्ट भी है। ठीक है, इसके अलावा क्या हम क्या कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉगिंग, कि वी कैन यूज द ट्यूब wells to pump out the groundwater, and because of it the water table get lowers. However, using this groundwater for irrigation again risk increasing soil salinity. अच्छा, होता क्या है, ट्यूबवेल्स जो है ये क्या है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि एज फार एज कराची सिटी इज कंसर्न, तो वी आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ drinkable water, clean water. So what most of the people are doing, they are doing the boring in their areas, in front of their house या inside their house, एक स्पेसिफिक जगह को सर्च करके और वहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं अंडरग्राउंड, और वो दे गो अप टू मैनी मीटर्स जो है आपके लो, और फिर वहाँ पे जाके व्हेन दे फाउंड द क्लीन वाटर, दे दे द होल प्रोसीजर इज बीइंग डन, और उसको फिर बाकायदा पंप आउट किया जाता है थ्रू मशीनरी। ठीक है ना। तो इसी तरह से ट्यूबवेल्स भी हैं, इसकी पिक्चर भी मैं आपको शो कर दूंगी। इसी तरह से ट्यूबवेल भी हैं, वो अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है थ्रू मशीनरी, मोटर मशीन्स जो है इनको जो है वो यूज़ किया जाता है। इस तरह वाटर टेबल तो अंडरग्राउंड वाटर टेबल तो बैलेंस रहता है, लेकिन अगेन इसका भी एक ड्रॉबैक है। वो क्या है जनाब, ये जो हम अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सक कर रहे हैं थ्रू मशीनरी और ट्यूबवेल्स की मशीनरी के थ्रू, ये हम अगेन यूज़ करेंगे फॉर इरिगेशन पर्पस, खेतों में पानी डालने के लिए। फिर अगेन क्या होगा, फिर वही रिस्क इज देयर कि वो जो खेतों में हम पानी डाल रहे हैं, जो क्रॉप्स को हम पानी दे रहे हैं, इरिगेट कर रहे हैं, वो द वाटर अगेन गेट एब्जॉर्ब एंड गोज अंडर द ग्राउंड, तो फिर वही वाला प्रॉब्लम है। सो ये है मतलब बताना ये है इनको कि सॉल्यूशन तो है, लेकिन हर सॉल्यूशन का एक एक ड्रॉबैक भी है मौजूद। फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज सम फील्ड्स, लीविंग देम फैलो। फैलो का मतलब ये है कि जनाब आपने उनको जो है वो प्लॉ तो किया, उसको उसकी मिट्टी को अपसाइड डाउन तो किया, लेकिन उस पे कोई क्रॉप ग्रो नहीं की। तो उनका इस तरह की ज़मीन का मकसद क्या होता है कि वो दे सोक अप द एक्सेस वाटर, वो सारा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना सोक कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर। ठीक है। फिर इसके अलावा एक और जो बहुत इफेक्टिव वे है कि वी शुड प्लांट ट्रीज अलोंग द कैनाल्स। The trees soak up the water in the soil, especially thirsty species such as eucalyptus. इस तरह की ट्रीज लगाएं जो कि जैसे यूकलिप्टस है, इट नीड्स मोर एंड मोर वाटर। ठीक है। या फिर बड़े जो ट्रीज़ हैं आपके, शेडेड ट्रीज़ लगाएं, तो उसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि उनके जो रूट्स हैं वो जो है वाटर सोक अप कर रहे होंगे, नंबर वन। एंड नंबर टू, उनके जो लीव्स हैं दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग शेड। तो इस तरह से जो है वो पानी जो है कैनाल का पानी, वो एवापोरेशन के थ्रू भी हम लूज़ नहीं करेंगे। इसी के जब कैनाल्स के ऊपर बड़े बड़े दरख्त जो है उनके लीव शेड कर रहे होंगे, साया दे रहे होंगे, तो फिर वो एवापोरेशन इतना ज़्यादा नहीं होगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ठीक है। फिर एक और प्रोसीजर है पानी को बचाने का भी और अंडरग्राउंड वाटर टेबल को भी कंट्रोल रखने का, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज़ करें विच डिलीवर ओनली द वाटर रिक्वायर्ड डायरेक्टली टू द क्रॉप्स। ठीक है। हम इसमें ना कैनाल चाहिए ना कुछ चाहिए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है हमें यूज़ करना चाहिए। इसकी मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाती हूँ जनाब, जो कि डेफिनेटली इंटरेस्टिंग भी होगी आपके लिए। सो दिस इज़ हाउ ड्रिप इरिगेशन इज़ बीइंग डन। ये स्मॉलर पाइप्स हैं, ये आपके मेन कहीं से भी जो है जहाँ से रेजरवायर एरिया है ये वहाँ से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। इन बिटवीन मेन पाइप्स हैं ये सारे, इनके ये हर जगह से पानी नहीं इसमें से गिर रहा, ओनली ड्रिपिंग इज़ बीइंग डन, और जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है ये खाली ड्रिप आउट हो रहा है खेतों में। ठीक है। अच्छा, इसका एक और भी चीज़ है कि ये देयर इज़ ए कैप ऑन इट। इफ ड्रिपिंग इज़ ऑल्सो नॉट नीडेड, ज़रूरी थोड़ी कि हर वक्त खेतों को पानी दिया जाए। अगर ड्रिपिंग भी नीडेड नहीं है तो
रेड कैप आपको नज़र आ रहा होगा हर जगह, आपने कैप आउट कर दिया तो वो ड्रिपिंग भी नहीं होगी। तो जब वाटर इज नीडेड, तो वी आर गोइंग टू ओपन दोज कैप्स एंड ड्रिपिंग विल स्टार्ट। और जितनी देर के लिए पानी ड्रिप आउट करना है खेतों में ये करेंगे, और फिर उसके बाद उसको दोबारा कैप कर दिया जाएगा। तो इस तरह से वाटर कैन बी मतलब आपको बचाया जा सकता है पानी को, ठीक है। water can be saved. So you inshallah you must have understood the procedure of saving the water in dams, ठीक है। एंड हाउ द डैम्स कुड बी क्लीन, ठीक है। और फिर इसके अलावा एंड अगेन जो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का प्रॉब्लम है उसको किस तरह से जो है वो स्टॉप किया जा सकता है, या उसको किस तरह से क्योर किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।